آغاز یقین کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان میں جی تسانا دوست متر میزبان تبیلی سلیم شہزاد بڑے خوبصورت شخصیت نال خوبصورت مقام پر خوبصورت گفتگو نا آغاز کرنے ہوں اج نے شعر و شاعری نے آغاز کرنے ہوں اسا تسا کو حاضر ہوئے جی اور ٹیسٹ ٹرانسمیشن طور پر کوئی غلطی کمی بیشی اگر ہوئی تو جناب اس نے معافی چاہسا کیونکہ بعض ٹیکنیکل پرابلمز بھی وچ آڑے آ جانیاں سگنلز نیاں اور روشنی نیاں اور آواز نیاں ہوا نے تیز چلنے نیاں اور ہوا نے دوش پر جڑی تساں نال ساڑی ملاقات ہونی انشاءاللہ تساں نے مطالبے پر اپنی صورت بھی تساں کی دسا جناب اور ساڑے معزز مہمان اج نے جڑے ہیں محقق بھی ہیں کالم نگار بھی ہیں نیشنل نیوز پیپرز انٹرنیشنل نیوز پیپرز جنہوں نے کالم تحریراں فکر انگیز تحریراں چھپڑیاں اور رہنمائی والیاں جس میں پراپر ڈائریکشن شامل ہونی سوچ کی ڈیولپ کرنی سوچنی تعمیری سوچ ہونی جہانگیر اشرف صاحب ترے کتاباں نے مصدم ساڑے مستقل ساتھی مہمان اور ساڑی پاک وطن ٹیم نے سرپرستاں وچوں اساں کی خوش آمدید بھی آخسا کول بھی بیسا گفتگو نہ سلسلہ بھی شروع کرسا اور جڑے ساتھی اس وقت آن لائن ہونا شروع ہوئے گئے محمد علی صاحب نے صورت فرام منگال آلسو فرام برمنگھم اور نعید پٹی صاحب اور اشفاق ملک صاحب اور نبیل مشتاق چودھری صاحب پاکستان امبیسی برمنگھم تو اور تنویر لودھی صاحب خاور چیمہ صاحب فرام ساؤتھ کوریا اور آلسو فرام سوئی چیمیا سہیل اقبال اوان صاحب اور بہت سارے پیارے اور سارے جنہوں نے فردن نہ لینا جڑا وہ وقت نہیں کمی نے وجہ تو مشکل ہے اپنے مہمان کو جانے جی تعارف نہ سلسلہ ہو چکیا تو گل بات نہ سلسلہ بھی شروع سی اور آج نے سوال نہ سلسلہ بھی شروع سی اور اساں اقصا جی السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان جی۔ وعلیکم السلام جناب، بہت بہت شکریہ سلیم صاحب عزت افزائی کا اور تمام دیکھنے والے دوستوں کو بھی السلام علیکم اور پھر ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ اور آپ کا شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ اور پہلے تو یہ بتائیں کہ جگہ جو ہے وہ اردو میں اگر ہم رکھتے ہیں تو کیسی لگ رہی ہے آج کی یہ لوکیشن آؤٹ ڈور موسم بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ موسم بہت سہانا ہے جی، یہاں ایسا موسم کم ہوتا ہے اور آپ نے اس موسم کا اور اس خوبصورتی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ہمیں بھی یہ موقع دیا کہ ہم بھی انجوائے کریں اس موسم کو اور آپ نے یہ نشست رکھی جس کے لیے آپ کے اور پاک وطن ٹی وی کے کا میں ذاتی طور پہ بہت مشکور ہوں، تو واقعی بہت اچھی لوکیشن۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اصل میں جہانگیر اشرف صاحب آپ ایسا ایک ایسے شعبے سے ہیں، احساس سوچ ہے آپ کی، سینسٹیو ہوتے ہیں وہ لوگ جو کاغذ اور قلم کا رشتہ جن کا ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ کاغذ کے قلم کے رشتے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کے ساتھ بھی تعلق ہو، شاعری کے ساتھ بھی تعلق ہو، کیونکہ فطرت بذات خود ایک تخلیق ہے، حقیقت ہے اور ایک حسن ہے اور حسن سے ہی پھر ایک چیز نکلتی ہے جو ہے وہ خوبصورتی۔ تو خوبصورتی کے ہم سب قائل بھی ہیں، محتاج بھی ہیں اور گھریلو کاروباری اور مختلف قسم کی جابز کی جو زندگی ہے، بہت سارے ہمارے دوست اس وقت ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ سن رہے ہیں پروگرام کو، مختلف شعبوں میں لوگ ہیں، زندگی میں ٹائم ختم ہو گیا لوگوں کے پاس باہر نکل کر ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا۔ بالکل ایسے ہی ہے جی کہ لوگ جو ہے نا ایک مشینی زندگی آ گئی ہے، کیونکہ پہلے اتنے بل نہیں ہوا کرتے تھے، گیس نہیں ہوتی تھی، بجلی، اب تو ایک گھر میں 5 موبائل ہیں، تو اتنے بلوں کو اتنے چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہر بندے کو محنت اور دوڑ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، ورنہ بندہ اپنے آپ کو پیچھے سمجھتا ہے۔ تو اس لیے زندگی مشینی دور ہے اور مشینی دور کی وجہ سے یہ زندگی بھی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ ٹائم نکالے، ایسے لمحات کو، ایسی چیزوں کو انجوائے کرے، کیونکہ ہم صرف یہاں مشین تو ہیں نہیں، انسان ہیں، ہمارے جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم غمگین بھی ہوتے ہیں، ہم پہ اچھے اور بری چیز کا اثر بھی ہوتا ہے، خوبصورتی کا بھی اثر ہوتا ہے،
गंदगी और बदसूरती का भी एक उसके ख़िलाफ़ एक आपके अंदर रिएक्शन पैदा होता है। तो इन सारी चीज़ों को रख के अपने लिए टाइम निकालें और ज़िंदगी में खूबसूरती को तलाश करें। हर चीज़ में खूबसूरती है, अल्लाह ने हर चीज़ में खूबसूरती पैदा की। ठीक, अल्लाह ने हर चीज़ में खूबसूरती पैदा की है, ये है जहांगीर अशरफ साहब का कहना। और खूबसूरती से एक चीज़ फिर निकलती है, वो प्यार हो तो मोहब्बत का एक रूप धार लेती है। मोहब्बत चीज़ क्या है? देखिए जी, अपने आप को किसी अगर 2 लफ्ज़ों में या चंद लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये है कि मोहब्बत अपने आप पे किसी को फोकियत देना मोहब्बत है। कि आप अपनी जो आपकी ख्वाहिश है, आपको कोई इतना वो प्यारा इतना है कि उसके लिए वो आप वो भी कुर्बान करने को तैयार है, ये है मोहब्बत। जैसे माँ अपना सुकून अपने बच्चे के लिए वो रात को जाग जाग के आपकी परवरिश करती है, ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत बुनियादी तौर पे कुर्बानी का नाम है। सही, कि जब आप किसी के लिए अपना सुख चैन या जो चीज़ें आपको अच्छी है वो दूसरे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम ये कहेंगे कि इस शख्स को फ़लाँ से मोहब्बत है या फ़लाँ बंदे से मोहब्बत है। तो मोहब्बत बुनियादी तौर पे कुर्बानी का मुतालबा करती है, और बग़ैर कुर्बानी के जो खाली लफ्ज़ होते हैं मोहब्बत नहीं होती। ठीक, आपको किसी से मोहब्बत हुई है क्या? जी, मुझे सबसे मोहब्बत है। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, दोस्तों से। मोहब्बत के बगैर इसके लिए एक शेर में अगर जवाब दूँ तो वो शायद ज़्यादा बेहतर है कि मोहब्बत के दम से जहां रोशन, मोहब्बत के दम से जहां रोशन, मोहब्बत न होती तो ये नगर उजड़ गए होते। अगर जीना सिर्फ अपने लिए होता तो कब के जहांगीर मर गए होते। तो ये मोहब्बत है जो आपको जिंदा रखती है। सही। जब आप हर चीज़ से मायूस होना शुरू हो जाएं, नाउमीदी इसी को कहते हैं कि आप मोहब्बत करेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। तो जब आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी, नाउमीद होंगे, तो आप जो है ना अपने खुदकुशी तक जा सकते हैं। ये नाउमीदी की आखिरी स्टेज है कि आप तो मोहब्बत से ही तो ज़िंदगी है, मोहब्बत से ही ज़िंदगी है, ये कहना था जहांगीर अशरफ साहब का। और आप हमारा साथ दे रहे हैं जहाँ जहाँ मौजूद हैं दुनिया भर में इस वक्त, चाहे वो साउथ कोरिया हो, पाकिस्तान हो, बरतानिया हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, सऊदी अरेबिया हो, या फिर हो कोरिया और गिनी बसाओ यानी कि वेस्ट अफ्रीका। आप हमारा साथ देते रहते हैं, देते रहा करें। फेसबुक पेज को आपने लाइक किया हुआ है, उसके ज़रिए से आप इस नशरियात को, इनकी वीडियोज़ को, खूबसूरत बातों को गाए बगाए आप सुनते रहते हैं और आज भी सुन रहे हैं। इस वक्त बरतानिया के शहर मिडलैंड यानी कि बर्मिंघम के एक बड़े खूबसूरत से पार्क में खूबसूरत गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको हम बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे। जहांगीर अशरफ साहब के पास आपके लिए काफ़ी जनाब बेहतरीन, म्यारी, अट्रैक्टिव, आपका दिल मोह लेने वाला मवाद मौजूद है जो हम आगे चलकर इनसे सुनने की दरख्वास्त करेंगे। बात को चलाने के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी किया गया है ताकि आपको और हमें, आपसे और आपको हमसे जो प्यार है वो मजीद न सिर्फ बढ़ जाए बल्कि एक शनासाई का सिलसिला जारी हो जाए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपसे ये दरख्वास्त है। और जिन दोस्तों को आप पाक वतन पेज लाइक करने के लिए कह सकते हैं उन्हें लाइक कीजिए ताकि आपका पैगाम, अर्ज़ वतन का पैगाम और मोहब्बतों का ये पैगाम, खूबसूरतियों का ये पैगाम दुनिया भर में फैलता रहे। क्योंकि जहांगीर अशरफ साहब भी कहेंगे यही बात, इंशाल्लाह पसंद करेंगे कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। बातचीत का ये सिलसिला जारी करेंगे जी। और आज हमारे लिए ये आज की महफिल में गेस्ट ऑफ द वीक में आज के मेहमान हैं, हमारे इस हफ्ते की अहम शख्सियत हैं। क्या कुछ लाए हैं जहांगीर अशरफ साहब? हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें जो आप आज हमारे नाजरीन को, पाक वतन के देखने वालों को कुछ सुनाने का आप जो ख़ास वक्त निकाला है अपनी मसरूफियत में से, वो क्या जनाब? आज जी हम शायरी लाए हैं, माशाल्लाह। शायरी सुनाएंगे और हल्की फुल्की रोमांटिक शायरी सुनाएंगे माशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना बागियाना सोच वाली मज़ामती शायरी, उससे इज्तनाब करेंगे क्योंकि खूबसूरती की बात हो रही है, खूबसूरत बातें करें। तो आगाज़ करते हैं इससे जी कि एक छोटी सी नज़म है, उसका उन्वान है कि सितारे क्यों टूटते हैं। कि आपने भी सितारे टूटते हुए क्यों टूटते हैं, तो एक शायर कैसे देखता है उसको, इसको नज़म किया है कि चांद चेहरा, गज़ाल आंखें, गुलाब हैं लब तुम्हारे।
चांद चेहरा गजाल आंखें गुलाब हैं लब तुम्हारे तितलियों के परू पर और दूर उफक दनक की सूरत तेरे ही बिखरे हैं रंग सारे। जबरदस्त। चांद चेहरा गजाल आंखें गुलाब हैं लब तुम्हारे तितलियों के परू पर और दूर उफक दनक की सूरत तेरे ही बिखरे हैं रंग सारे। जुगनुओं की बारात लेकर खुशबुओं की सौगात लेकर, बहुत अच्छे। जुगनुओं की बारात लेकर खुशबुओं की सौगात लेकर औले से बादे नसीम आकर तेरी उलझी लट संवारे। जबरदस्त। और तेरी एक झलक की खातर, तेरी एक झलक की खातर टूट के फलक से आए सितारे मेरी तरह तेरे इश्क के मारे। जबरदस्त। चांद चेहरा गजाल आंखें गुलाब हैं लब तुम्हारे। वाह वाह, क्या बात है जी। यकीनी तौर पर आपको भी पसंद आया होगा और आपने भी दाद अपने तौर पर दी होगी और ये वीडियो चलती रहेगी इंशाल्लाह, बाद में भी आपको इससे महसूस होते रहेंगे। बहुत खूबसूरत जनाब। आगे चलते हैं जी। एक गजल आपको अभी सुना देते हैं कि मेरी आंखों में एक ही मंजर रहा, मेरी आंखों में एक ही मंजर रहा, अक्स उस माए कामल का मेरे दिल पर रहा। बहुत खूब। मेरी आंखों में एक ही मंजर रहा, अक्स उस माए कामल का मेरे दिल पर रहा। एक तिलिस्म होशरबा सरापा उसका, बहुत अच्छे। एक तिलिस्म होशरबा सरापा उसका, उम्र बर कल्बो जां पे जिसका सैर रहा। बहुत खूब। और हमेशा गर्दिशों में रही उसकी मोहब्बतें, हमेशा गर्दिशों में रही उसकी मोहब्बतें, वो जो सदा मेरी मोहब्बतों का महवर रहा। बहुत अच्छा। और मेरी तकमील जिसके उसने वजूद से है, मेरी तकमील जिसके उसने वजूद से है, मुझसे दूर वो हुस्न का पैकर रहा। और शेर सलीम साहब मुलादा कीजिएगा कि पत्थरों से उसे कोई तो निस्बत होगी, पत्थरों से उसे कोई तो निस्बत होगी, शहर संग में जो आइनू का सौदागर रहा। और वक्त के खुदाओं की अतात न की कबूल, वक्त के खुदाओं की अतात न की कबूल, पसे मर्ग भी हाथ में खंजर रहा। यास के गुप अंधेरों में भी जहांगीर, यास के गुप अंधेरों में भी जहांगीर, उम्मीद का जुगनू मेरे दिल के अंदर रहा। मेरी आंखों में एक ही मंजर रहा, अक्स उस माए कामल का मेरे दिल पर रहा। बहुत अच्छे, बहुत खूब जी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, कहीं नहीं जाइएगा छोटी सी एक ब्रेक के साथ। तो जनाब अभी आपको एक नज़म, आज़ाद नज़म है, समझौता इसका उन्वान है। कि वैसे तो ज़िंदगी नाम ही समझौते का है माशाल्लाह। तो इस हवाले से है कि मैं लाख दावे करूं तरके मोहब्बत के, मैं लाख दावे करूं तरके मोहब्बत के, ज़ब्ते शौके उल्फत के, तेरी यादों को मिटाने के, तुझको भूल जाने के। सही। मैं लाख दावे करूं तरके मोहब्बत के, ज़ब्ते शौके उल्फत के, तेरी यादों को मिटाने के, तुझको भूल जाने के, मगर मेरे हमदम अगर इन दावों में सदाकत है और यहीं तरके मोहब्बत है, तो फिर तेरा नाम सुनकर क्यों दिल धड़कता है। सही। तेरे कदमों की आट पर ये दिल क्यों मचलता है, तेरे लौट जाने पर ये दिल क्यों सुलगता है। मेरे हमदम अक्सर शबे तन्हाई में, मेरे हमदम अक्सर शबे तन्हाई में, तेरी यादों के जुगनू मेरे दिले तेरी यादों के जुगनू मेरे दिले मुस्तरिब में टमटमाते हैं। कभी मुझको रुलाते हैं, कभी मुझको हंसाते हैं, और मेरी बेचैन आंखों में रत जगे जगाते हैं। मेरे हमदम मैं लाख दावे करूं तरके मोहब्बत के,
ضبط شوق الفت کے، تیری یادوں کو مٹانے کے، تجھ کو بھول جانے کے، مگر ان دعووں میں صداقت نہیں ہے، صحیح، مگر ان دعووں میں صداقت نہیں ہے، یہ ترک محبت نہیں ہے، یہ فقط سمجھوتا ہے، اپنے آپ سے دھوکا ہے، اپنے آپ سے دھوکا ہے۔ یہ ماشاءاللہ، فقط سمجھوتا ہے، اپنے آپ سے دھوکا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے جی۔ ایک غزل میں نے اس طرح کوشش کی ہے کہ نظم اور غزل دونوں کو ملا کے آپ کو سنائی جائے کہ صدا چراغ امید وصال کو جلتا رکھا، صدا چراغ امید وصال کو جلتے رکھا، میں نے تیرے لیے دروازہ دل کھلا رکھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ صدا چراغ امید وصال کو جلتا رکھا، میں نے تیرے لیے دروازہ دل کھلا رکھا، تیری الفت کی ایک بوند مجھے سیراب کر دے گی، واہ واہ، تیری الفت کی ایک بوند مجھے سیراب کر دے گی، عمر بھر اسی انتظار میں خود کو پیاسا رکھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تیری الفت کی ایک بوند مجھے سیراب کر دے گی، عمر بھر اسی انتظار میں خود کو پیاسا رکھا، بہت اچھے۔ بس ایک ہی تصویر نقش ہو گئی دل پر، بس ایک ہی تصویر نقش ہو گئی دل پر، دل پر۔ نہ جانے کتنی تصاویر کے مقابل یہ شیشہ رکھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جتنے بھی زخم تھے، یہ ذرا شعر سنیے گا کہ جتنے بھی زخم تھے سبھی محک اٹھے، جتنے بھی زخم تھے سبھی محک اٹھے، ہاتھ تو نے میرے سینے پہ ایسا رکھا، زبردست، ہاتھ تو نے میرے سینے پہ ایسا رکھا، کئی بسمل اور کئی قتیل تھے پھر بھی، واہ واہ، کئی بسمل اور کئی قتیل تھے پھر بھی، زہے نصیب مجھے ان سے علیحدہ رکھا، صدا چراغ امید وصال کو جلتا رکھا، میں نے تیرے لیے دروازہ دل کھلا رکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے جی۔ اور ایک اور یہ غزل پبلش بھی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہے اسا صاحب سے، بہت شکریہ، میں نے پڑھی بھی نہیں ہے ابھی تک، بہت یہ شکریہ آپ کے لیے جی، بہت شکریہ۔ کہ مٹا دے نقش میرا، مٹا دے نقش میرا یا پھر سنوار دے، مٹا دے نقش میرا یا پھر سنوار دے، میرے کوزہ گر مجھے چاک سے اتار دے، واہ، میرے کوزہ گر مجھے چاک سے اتار دے، تو سن کا بادشاہ، تو سن کا بادشاہ، مشق ستم اور بڑھا، واہ واہ، تو سن کا بادشاہ، مشق ستم اور بڑھا، زخم زخم میں دل میرا، اس کو اور نکھار دے، کیا بات ہے۔ اور تو نے جو غم دیا، تو نے جو غم دیا، تجھے لگے جو کم دیا، تو نے جو غم دیا، تجھے لگے جو کم دیا، قسم تجھے نہ کر دیا، قسم تجھے نہ کر دیا، دیمی کوئی ہزار دے، بہت اچھے، بہت خوب۔ اور آگ نہ ہو سینے میں، آگ نہ ہو سینے میں تو کیا مزہ پھر پینے میں، آہا، آگ نہ ہو سینے میں تو کیا مزہ پھر پینے میں، لطف آئے جینے میں ایسا کوئی خمار دے، واہ واہ، لطف آئے جینے میں ایسا کوئی خمار دے، تجھ پہ کیا دل فدا، تجھ پہ کیا دل فدا، بول اور چاہیے کیا، تجھ پہ کیا دل فدا، بول اور چاہیے کیا، تو جو کہے دربا دیوانہ جان وار دے، کیا بات، کیا بات ہے۔ تو جو کہے دربا دیوانہ جان وار دے، آنکھیں ہیں ویراں ویراں، دل ہے دعاں دعاں، آنکھیں ہیں ویراں ویراں، دل ہے دعاں دعاں، بدل دے تو یہ سما، بدل دے تو یہ سما، نوید جشن بہار دے، کیا بات، کیا بات، بدل دے تو یہ سما، نوید جشن بہار دے، عشق دل کا روگ بنے، بہت اچھے، عشق دل کا روگ بنے، نہ عمر بھر کا سوگ بنے، زبردست، عشق دل کا روگ بنے، نہ عمر بھر کا سوگ بنے، اپنا یہ سنجوگ بنے، ایسا مجھ کو پیار دے، کیا بات، مٹا دے نقش میرا یا پھر سوار دے، میرے کوزہ گر مجھے
चाक से उतार दे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी, बहुत खूब माशाल्लाह। और क्या ही बात है कि कूज़े में दरियाई बंद कर दी है, क्योंकि शायर के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि कालम निगार पूरे औराक मुख्तलिफ सफ़ात मुख्तलिफ का सहारा लेके अपने अंदर की बात बाहर निकालता है और किसी को कन्वेंस करता है, मैसेज कन्वे करता है। लेकिन शायर दो सत्रों में, तो एक शेर में पूरी की पूरी चीज़ या अपनी नज़म और पूरी एक गज़ल में पूरी तरह से वो कर देता है। इसके लिए कोई स्पेशल मशक होती है, स्पेशल मुतालिया होता है या? देखिए जी, मशक़ सुखन के बगैर तो कुछ नहीं होता। अगर मैं अपना इब्तदाई कलाम देखूँ तो वो अभी मुझे पसंद भी नहीं आता, उसमें वो गहराई नहीं है या जो एक मेयार बनता है वो तो मशक़ सुखन से है। और दूसरा ये है कि ये दीवानों का काम है, इसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इसमें अगर आप किसी और प्रोफेशन में, किसी और चीज़ में इतना जोर लगाएंगे, रात को जाके एक मिसरा आ गया या तो आप लिखने बैठ के, तो अगर शादीशुदा है तो बीवी कहेगी क्या है, अगर माँ बाप है तो वो कहेंगे कि ये तुम्हें क्या हो गया। तो ये बुनियादी तौर पे एक वो जुनून जिसको होता है, बल्कि जितने भी फन से वाबस्ता लोग हैं ना वो होते थोड़े जुनूनी है, और इसीलिए वो बगैर किसी फ़ायदे और ये सूदो ज़ियां वाले चक्कर में नहीं पड़ते कि इससे मुझे फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है। ये एक लगन है, मोहब्बत है, शौक़ है जो उनसे ये कराता है। लेकिन इसमें आस्ता आस्ता इसमें पुख्तगी भी आती है, इसमें मुताले की भी ज़रूरत होती है। जब आप अच्छे शुरा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको फिर पता चलता है यार कि म्यार क्या है, हम क्या, क्योंकि हर बंदा कीट्स जो इंग्लिश का बड़ा मशहूर शायर था, उसने कहा था कि 25 साल तक हर जवान शायर होता है, उसके बाद जो शायर होता है वो असली शायर होता है। असली शायर होता है। अच्छा 25 साल तक हर नौजवान शायर होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो असली शायर होता है। छठी हो जाती है और फिर जो वो जो क्योंकि वो एक ऐसी आपकी जवानी की उम्र होती है, तो आप में वो एक आग सी होती है, तो वो आपको वो तो उसको उस शोले को जो है ना, आप वो जो एक दफ़ा आता है उसको जो पकड़ लेता है और उसको ज़िंदगी भर साथ रखता है, वो फिर शायर होता है। चलो अगला सवाल भी यही था और आपने उसका जवाब भी बड़ा उम्दगी से पहले ही अच्छा तरीके से दे दिया है कि सवाल ये था कि शायर बनने के लिए चोट लगना ज़रूरी है। ये किसी हद तक तो शायद दुरुस्त हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी भी नहीं है, ठीक। देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि ज़रूरी हो, तो वरना बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे को जानता हूँ कि जिनके साथ वो बहुत अच्छे शायर थे लेकिन चोट उन्हें बाद में आके लगी। अच्छा। कुछ ऐसे थे। ये कोई मेरे हिसाब से ये लाजमी नहीं है, मगर हर बंदे का एक वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी क्या है, हर एक के लिए तजर्बा नया है। इसी तरह शायरी का उसका हर एक इंसान का एक कोई आपको हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है इसमें कि ये जनाब ये बात होगी तो वो शायर होगा। ठीक, ज़्यादातर शायरी में जुल्फ़ों का जिक्र होता है और गज़ाली आंखों का बड़ा जिक्र है। गज़ाल का इसमें क्या कसूर है या उसकी आंखें बहुत खूबसूरत। अच्छा, जुल्फ़ों का बड़ा जिक्र है। अब ये लोगों को ये गज़ाल जो है ना हिरन को बोलते हैं, जी। तो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, तो उसकी आंखें जो होती हैं बड़ी खूबसूरत, बड़ी लंबी, और वो एक तशबीह है कि आप एक तशबीह देते हैं जिससे कंपैरिजन, जैसे आप कहते हैं यार वो बंदा शेर है, अब इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है तो आप उसको एक दरिंदे से मिला रहे हैं, तो असल में मतलब ये होता है कि उसकी तरह आप बहादुर हैं। जैसे हजरत अली के लिए कहा कि वो शेर खुदा हैं। तो ये जो इस्तियारे और तशबीहात होती हैं, इससे जो है ना शायर अपना वो काम लेता है और उससे वो अपने मकसद को, अपनी बात को आगे बढ़ाता है। एक मर्द शायर से ये सवाल है, मर्द शायर से, कि सारी शायरी शुरू में मर्द ही आए शायरी में, फिर ख्वातीन भी माशाअल्लाह बड़ी तादाद अब मौजूद है और सनफ़ नाज़क ने में ये मैदान खाली नहीं रहने दिया और उस शेर को भी मुकम्मल कर दिया अल्लामा साहब का। गलबन ये शेर है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो शायरी का जो कायनात है, इसमें भी उन्होंने अपने वजूद से इसको मुकम्मल करने की कोशिश की और ख़वातीन शायरात ने बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद हैं, बड़े नाम पैदा किया है, नामवर ख़वातीन मौजूद हैं, शायरात मौजूद हैं।
शायरी सारी शुरू में मर्दों के हाथ में रही, मर्द का ये मुआशरा भी है, दुनिया पूरी तकरीबन मर्द के मुआशरा कहलवाती है। बेशक यूरोप है, यूके है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वीन की गवर्नमेंट है, ख्वातीन का राज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मर्द को बालादस्ती हासिल है। इसी तरह मैदान शायरी में भी मर्दों की इजारादारी अब भी है, ख्वातीन ज़रूर मौजूद हैं और वो मर्दों की एहतराम करती है और उनसे सीखने की कोशिश भी करती हैं, और इसी थपकी और शाबाश में वो आगे भी गई हैं, ऊपर भी गई हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन शायरी में शायर ने जो सहारे लिए वो लिए खूबसूरती के तस्करे के, और मैं थोड़ी सी ज़्यादा चाहूँगा आपसे, और उन्होंने जुल्फ़ों को सामने लाया है, गज़ाली आंखों को और याकूती होंठों को, और इसी तरह की सतवां नाक को, सतवां गले को, कद को, उन्होंने ब्यूटी को बहुत ज़्यादा है, मखरूती उंगलियों को, हाथों को, सनफ़े नाज़िक को ही वो फोकस कर रहे हैं शायर। ख्वातीन शायरात ने ये जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं की है, ऐसा नहीं है। परवीन शाकिर की शायरी आप देखें, अच्छा, और इसी तरह नौशी गिलानी आज के दौर की बेहतरीन तर्जमानी कर रही हैं, तो वो करती हैं, लेकिन वो यही होता है कि अल्लाह पाक ने एक चीज़ रखी है कि हम ख़ास कर में अगर मशरकी औरतों की बात करें तो उनमें अयाज जो है ना मर्दों से ज़्यादा रखी है, राइट, और उनमें एक पर्दे का होता है, तो वो उस तरह वोकल नहीं है, उस तरह बुलंद आंग में वो शायद बात ना करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो करती हैं। क्योंकि देखें जी, असल जो चीज़ है ना वो ये है कि हर चीज़ की अट्रैक्शन जो है ना, उसकी पहचान जो है ना उसका अपोजिट है। रात है तो दिन है तो रात है, अच्छा गर्मी है तो सर्दी है, पानी है तो आग है, मर्द है तो औरत है, तो उसकी अट्रैक्शन भी इसी तरह है। तो हर चीज़ का जो है ना अपना अपोजिट का, तो वो जो रवायती शायरी आप उर्दू के कहें अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। फैज़ साहब की शायरी आप देखें, अहमद नदीम कासमी साहब की शायरी देखें, अहमद फराज साहब की शायरी देखें, कैफी आसमी की, सैल उद्यानवी की, इब्न इंशा की, तो उन्होंने बहुत रवायत से हट के शायरी की है। और नून मीम राशिद की शायरी, उसमें मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। मीरा जी की शायरी आप देखें तो ये वो नाम है, मजीद अमजद साहब की शायरी नाम ले लेना को तो बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्होंने रवायत से हट के, तो आप जिस शायरी की बात कर रहे हैं जो गज़ल की ज़्यादा है, गज़ल की शायरी है, उसमें जो है ना ऐसा ही है कि की गई है और वो रवायत अभी तक आया है और उस रवायत को हम भी निभा रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम दूसरी तरह की शायरी जो हमारे असरी हालात हैं, हमारे मौजूदा हालात हैं, उन पे मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन मैं उसको अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि हम इस खूबसूरती को में जो है ना वो गंभीर मसाइल लेके ना आए कि लोग पहले ही बहुत सारे वो है हालात के सताए हुए, तो हम उनकी तस्वीर कशी करें, तो वो जो एंजॉय कर रहे हैं तो उनके लिए हमारा वादा भी था कि आज हम आपके जख्मों पर मरहम रखेंगे, खूबसूरती की बात करेंगे। तो इसलिए औरत को, और ऐसा नहीं है, और तशबीहात से जुगनू की बात की गई है, तितलियों की बात की गई है, गज़ाल की बात की, ये सारी तशबीहात इस्तेमाल करके वो एक मंजर कशी करता है। और यही जो है ना, वैसे तो ये सारी जो शायर बात करता है ये सारी हर एक लोगों को पता भी होती है, लेकिन उसका जो लिखने का अंदाज़ होता है वो दिल को छू जाता है, वहीं उसकी शायरी को मकबूलियत बख्शती है, उसको पॉपुलर बनाती है, यार कि ये जो बात थी ये तो इसने मेरे दिल की बात कह दी। बिल्कुल, तो ये असल बात है। और अपनी शायरी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ पैराए में की है और तनकीद नगारी भी की है शायरी के अंदर ही, और हालात की मंजर कशी भी की है जो मुआशरे के अंदर हालात चल रहे हैं, जालिम के, मजलूम के, जब्बर के, डिक्टेटरशिप के, दीगर, ये भी आपने की है। और शायरी में रोमानियत भी का भी आपने जो किया है, जो इसका बुनियादी हक भी है, जो इसका तारफ़ भी है, क्योंकि हर आदमी इन चीज़ों में से ही कोई अपने मतलब की चीज़ तलाश करता है। तो शायरी में आपने रूमानियत का भी सहारा लिया। तो रूमानियत का जब हम जिक्र करते हैं तो सनफ़े नाज़क यानी सनफ़े मुखालफ का जिक्र बीच में आ जाता है। सनफ़े नाज़क के अंदर खूबसूरती दूसरा नाम है, सनफ़े नाज़क से मुराद ये। तो सनफ़े नाज़क के अंदर में ख्वातीन में खूबसूरती में
कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा दिल को भाती है? सर जी, उसका किरदार का अच्छा होना, उसके अखलाक का अच्छा होना। ये जो ऐसी चीजें हैं कि जिसका जिस्म के साथ तलक कम है देखिए- लेकिन महसूस करने की हद तक है, जिस सनफे नाजुक के वजूद में क्या चीज पसंद है? मैं आपको ये बताऊं जी कि जो इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अभी भी कुछ लोगों को हो सकता है मेरा चेहरा इतना अच्छा ना अट्रैक्टिव ना लग रहा हो, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ना कि इंसान का दिमाग है। राइट। और यही औरत का भी अगर वो अच्छे दिमाग की होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी, आपके लिए सेक्रीफाइस करना करेगी, तो वो एक तरह का मोहब्बत का इज़हार, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। जो वक्ती उबाल होता है या वक्ती जज्बात होते हैं वो कुछ अरसे तक तो वो चलते हैं, लेकिन बाद में अगर खाने में आपके एक बाल आ जाए ना तो आप शायद प्लेट उठा के फेंक दें। तो रियलिटी को आप नहीं भूलना है। ये ठीक है, ये चीज़ें लाजम है कि आप अपने आपकी महबूबा है, बीवी है, उसकी तारीफ़ करना, ये हमारा मज़हब भी इसका मतलब है वो तालीम देता है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन इसका हरगिज़ नहीं मतलब कि अगर आप मुझे कहें तो मैं कहूँगा कि जिसका खूबसूरत दिमाग है ना वो सबसे खूबसूरत औरत है मेरे नज़र से। जितना उसका अच्छा दिमाग है कि वो दिमाग खूबसूरत सोच ही जो है ना इंसान को खूबसूरत बनाती है। आज आप मेरे पास ये है कि मेरी सोच को ही आप लेके आए हैं। मेरे से बहुत खूबसूरत जवान होंगे, हम तो अब बूढ़ों में शायद शुमार हूँ, लेकिन वो चीज़ होती है कि आपका दिमाग, आपकी सोच क्या है, यही इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है, वरना सारे इंसानों को अल्लाह ने बराबर पैदा किया। ठीक, बहुत अच्छे। अभी मज़ीद कलाम की तरफ चलेंगे और ख़ूबसूरती सनफ़े नाजुक के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगती है, जिस महारत और बेहतरीन हिकमत अमली से आपने उस चीज़ को बयान भी कर दिया और दिफा भी कर दिया है, अपना कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर ही सिलसिले ये जारी रहेंगे, वफ़ाओं के, मोहब्बतों के और मैरो वफ़ा के, लेकिन एक छोटे से वक्फ़े को लेंगे और वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा आते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ठहरिएगा। वहाँ से सिलसिले टूटे थे जनाब, खूबसूरती से, और खूबसूरती वजूद ज़न से है, तस्वीरें कायनात में रंग। जनाब चूँकि आपसे वादा किया था कि माहौल को अच्छा रखेंगे आज, और कोई ना वो आएंगे इधर वाले, ना वो आएंगे उधर वाले, जो दिमाग को आजकल परेशानियाँ हमारे ज़्यादा, बहुत सारी वैसे भी ज़्यादा लगी हुई हैं। कभी वो मॉर्गेज के मामले होते हैं यूरोप यूके में, कभी वो किसी शायर ने कहा था एक तो खत इतने सुट जाते ने कि जिन्हें पढ़ के ऐसे ही लक टूट जाते रहे दिल टूट जाते रहे। तो जनाब इसीलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। और बड़ी खूबसूरत जगह पर हम बैठे हुए हैं और इसके व्यूज़, मनाजर, बाकी भी सारे आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए से, जो इंशाल्लाह आपको दिल को मुनव्वर कर रहे होंगे, मुअत्तर कर रहे होंगे, और जो मुस्तरिब दिल हैं उनमें खुशियाँ बांट रहे होंगे। और खुशियाँ बांटने के साथ लिए ही आज जहांगीर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई ऐसा कलाम जो आज मैं सुनाना चाह रही हूँ और उस पर आपको खुद भी बड़ा नाज आता हो, प्यार आता हो। ये एक गीत है जी जनाब, इसको गीत कह सकते हैं कि मेरा इश्क मेरी मोहब्बत भी तू है। मेरा इश्क मेरी मोहब्बत भी तू है, मेरा शौक मेरी ज़रूरत भी तू है। मेरा शौक मेरी ज़रूरत भी, मेरा इश्क मेरी मोहब्बत भी तू है, मेरा शौक मेरी ज़रूरत भी तू है। सीने में मेरे धड़कते तुम ही हो, सीने में मेरे धड़कते तुम ही हो, सांसों में मेरे बसते तुम ही हो। तुझे मैंने सोचा, तुझे मैंने पूजा, तुझे मैंने सोचा, तुझे मैंने पूजा, तेरे सिवा दिल न चाहे कोई दूजा। तेरे दर पे ही सब कुछ लुटाया, दुनिया को छोड़ा, तुझे मैंने चाहा। मेरा विर्द मेरी इबादत भी तू है, मेरा इश्क मेरी मोहब्बत भी तू। वाह। और शायर जो होता गजल में लिखता, शायर जो होता तो गजल में लिखता, परियों का तुझको बदल में लिखता। क्या बात है, क्या बात है। शायर जो होता गजल में लिखता, परियों का तुझको बदल में लिखता। मुसव्वर जो होता तो मूरत बनाता, मुसव्वर जो होता तो मूरत बनाता। सितारों से तेरा बदन में सजाता,
مصور جو ہوتا تو مورت بناتا، ستاروں سے تیرا بدن میں سجاتا، مغنی جو ہوتا تجھے گنگناتا، مغنی جو ہوتا تجھے گنگناتا، دنیا کو تیرا ہی مکھڑا سناتا، میرا فن میری ریاضت بھی تو ہے، میرا عشق میری محبت بھی تو ہے۔ کیا بات۔ اور یہ بند ملاحظہ کیجئے گا کہ اس میں ساری وہ جو ہے نا استعارے، پھول اور اس طرح کی چیزوں کو میں کوشش کیا اس کو شاعری میں پرونے کی کہ پھولوں کو ملتی جو خوشبو تمہاری، پھولوں کو جو ملتی، پھولوں کو ملتی جو خوشبو تمہاری، میں کٹتی دنیا ساری کی ساری، ملتے دنک کو جو رنگ تمہارے، بکھرتے فلک پہ نتنے نظارے، سورج جو دیکھے چہرہ تمہارا، سورج جو دیکھے چہرہ تمہارا، بھول جائے سورج چمکنا دوبارہ، میرا تخیل اور حقیقت بھی تو ہے، کیا بات، میرا عشق میری محبت بھی لاجواب۔ اور مجھے بھولنا نہ کبھی چھوڑ جانا، مجھے بھولنا نہ کبھی چھوڑ جانا، کہے تجھ کو چاہے سارا زمانہ، تیرے بن جانم جی نہ سکوں گا، زہر جدائی کا پی نہ سکوں گا، میرا ساتھ دینا مجھے پیار کرنا، میرا ساتھ دینا مجھے پیار کرنا، میرے سنگ جینا میرے سنگ مرنا، میری ہر خوشی میری راحت بھی تو ہے، میرا عشق میری محبت بھی۔ واہ واہ، زبردست، بہت خوب جی۔ دو قطعات ہیں، وہ ایک اس طرح ہے کہ تو ہی وجہ ہے میری افسردگی کی، تو ہی وجہ ہے میری افسردگی کی، تو ہی میرے دکھوں کا ازالہ ہے، تو ہی وجہ ہے میری افسردگی کی، تو ہی میرے دکھوں کا ازالہ ہے، تو نے ہی اندھیرا کیا میری زندگی میں، تو نے ہی اندھیرا کیا میری زندگی میں، تو ہی میری صبح کا اجالا ہے، تو ہی میری صبح کا اجالا ہے۔ دوسرا قطعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے تصور میں رہا، میرے خیال میں رہا، میرے تصور میں رہا، میرے خیال میں رہا، تو ہی عمر بھر میرے دستے سوال میں رہا، اور ایک پل بھی تیری یاد سے تغافل نہ کیا، ایک پل بھی تیری یاد سے تغافل نہ کیا، میں جہاں بھی رہا جس حال میں رہا۔ اب ایک غزل سناتے ہیں جی کہ یہ غزل تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا دل پہ کوئی چوٹ لگی ہو تو اس طرح کی غزل ہے کہ اس میں تھوڑا سا درد بھی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اور چونکہ آپ نے نام غزل کا بھی لیا اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو اس شعبے سے تھوڑے پسند کرتے ہیں، لیکن تھوڑے اس شعبے سے، اس سبق سے، اس کیا لیں کہ اس سکول سے تھوڑے اکیڈمی سے دور ہیں، غزل اور نظم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غزل میں آپ کا ہر شعر ایک مکمل میسج رکھتا ہے، ایک مکمل شعر ہوتا ہے، آپ جو بھی اس میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں ایک شعر میں وہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ دو بند ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا، اور ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ان کا ضروری ہے غزل میں۔ جبکہ جو نظم ہے نا، تو نظم کی بہت ساری ہے، اس میں بھی آپ قافیہ اور ردیف اگر کرنا چاہیں تو جو پابند نظم ہے اس میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خاص موضوع کو آپ جو ہے نا جیسے ایک مضمون لکھتے ہیں نا اس کو ایک خاص موضوع پہ ہی رکھتے ہیں، ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اسی موضوع پہ آپ جو ہے نا وہ شروع سے آخر تک جائے گی، وہی وہ آپ ایک طرح کی جیسے آپ کہیں کہ کہانی سنا رہے ہیں، کوئی افسانہ سنا رہے ہیں، یا کوئی جو بھی چیز آپ کہنی ہے نا وہ پورا ایک، اس سے پابند نظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نہیں پابند آپ اس کو اس طرح کہیں گے کہ اگر اس کا قافیہ، ابھی نظم کی بہت ساری اقسام آ گئی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں قافیہ اور ردیف اوزان کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ پھر آزاد نظم ہے، آزاد نظم کے بعد نثری نظم ہے، تو یہ نظم کی بہت ساری اب قسمیں ہیں جو مختلف طرح کے، جو خاص کر آزاد نظم اور نثری نظم ہے یہ زیادہ تر مغربی جس کو یورپ ہم کہتے ہیں یا انگلش کے اور فرینچ اور دوسرے ان شعراء نے اس طرح کی شاعری کی ہے، تو ان سے انسپریشن لے کے اردو میں بھی یہ تجربے کیے گئے۔ اس میں میراں جی کا نام بہت ہے اور مجید امجد صاحب کا ہے،
اور نون میم راشد نصری نظموں کا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، تو اس کے بعد بہت ساروں نے کیے، منی نیازی صاحب کی ملتی ہے، بلکہ اس کے بعد تو سارے شعراء نے کیے ہیں، احمد فراز کی بھی لیکن اس سے پہلے آپ پیچھے چلیں تھے تو حفیظ جلندری صاحب تو اس کو شاعری مانتے ہی نہیں تھے، جو آزاد نظم ہے یہ نثری، لیکن ابھی یہ رائج ہے اور اس کو باقاعدہ ایک صنف سخن مانا جا رہا ہے۔ رائٹ، اور نظم کا کوئی خاص حجم، کوئی خاص سائز ہوتا ہے؟ سائز کوئی نہیں ہے، جیسے آپ نے وہ ان کی بڑی مشہور مسد سے عالی ہے، کتنی لمبی وہ ہے، وہ نظم ہے، لیکن اس کو کوئی جیسے حفیظ جلندری صاحب کا شاہنامہ اسلام ہے کہ وہ پورے جو اسلام کی ہسٹری ہے انہوں نے اس میں شاہنامہ اسلام میں بیان کر دی، نظم کر دی ہے، یعنی کہ جو اسلام کی ہسٹری ہے نبی پاک اس کو ایک شاعری کی ہے، تو وہ اس کو شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری، تو نظم کا حجم سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کتنا ہوگا یا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے کہ وہ ایک خاص چیز کو کور کرتی ہے۔ نظم میں کچھ لوگوں نے مختلف تجربات کیے ہیں، مختلف پیرائے میں لکھنے کا اعزاز حاصل ہے انہوں نے اس پر محنت کی ہے، جیسے کوئی نظم یا کوئی نعت ایسی ہے دیکھنے میں آتی ہیں جن میں نقطے کا استعمال بالکل نہیں کیا گیا، آپ کیسا دیکھتے ہیں ان کے اس عمل کو؟ دیکھیں جی، اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا میسج پہنچا سکے یا نہیں، اپنا میسج پہنچا دینا ہی سب سے اہم بات ہے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو وہ ان کا وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ رائٹ، اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے شعراء ملتے ہیں جو پرانے دور کے تھے کہ انہوں نے بغیر نقطوں کے قرآن پاک کے تراجم کیے، انہوں نے شاعری کی، تو یہ یقیناً بہت مشکل ہے، نقطوں کے ساتھ کرنا اتنا مشکل ہے، مجھے پتا ہے کہ اس چیز میں تو بغیر نقطوں کے ساتھ جنہوں نے کیا تو وہ واقعی محنت ہے ان کی، محنت بھی ہے اور ان کا دماغ کا بھی داد دینی پڑتی ہے۔ داد دینی پڑتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا، اور پھر غزل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ کی غزل سننے سے پہلے آخری سوال کے طور پر، تو غزل کا بھی کوئی خاص سائز اور حجم ہوتا ہے یا نہیں؟ غزل کے کم از کم 5 سے 7 جو نارمل غزل لکھی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی رکھنے، لیکن 5 شعر سے کم جو ہے نا اس کو کم ہی وہ غزل مانا جاتا ہے، لیکن اس کو اگر وہ 4 شعر ہے نا تو اس میں وہ پھر قطع اور میں وہ شمار کیا جاتا ہے۔ سی عرفی کسے کہتے ہیں؟ سے عرفی جس میں 3 ہوں، 3 والے ہو، 3 مصرے ہوں، 3 لائنیں ہوں، اس کی 17 ہوں۔ اردو میں اس کا ہو سکتا ہوگا، میرا اتنا نالج نہیں ہے اس کا، میں اس پہ کوئی عرفے آخر کے تو بیان کر سکوں، لیکن پنجابی میں سے عرفی اور ہندکو میں ہمارے میں سے عرفی کا بہت رواج ہے۔ ٹھیک ہے، گیت آپ نے لکھا اور گیت میں آپ نے بڑے ماشاءاللہ بڑے الفاظ کا چناؤ کیا، ججے طلع ناز تھا، اور اوپر مد و جزر اس کے اندر سارے آتے گئے، کیفیت کے لحاظ سے، آج کے موسم کے لحاظ سے، آج کے ڈیمانڈ کے لحاظ سے، وہ ساری آپ نے اس پر گرفت رکھی اپنی پوری کی پوری، اور آج کا پورا پروگرام، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، پاک وطن کے دیکھنے والے سارے لوگوں کو، دوستوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے، سن بھی رہے ہیں، اور ان دوستوں کا بھی خاص طور پر آپ کے لیے جو پیار کرتے ہیں کہ آپ کی محفل میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شعروں کے ساتھ بھی آپ کا وہ خیر مقدم کر رہے ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، باری بھی کہہ لیں اس کو، یا وہ ان کے اندر جو شاعری محبت ہے اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ صاحب ہیں سہیل اقبال ان کا نام ہے، اور تحصیل گجر خان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ صاحب اس وقت دمام سعودی عربیہ میں مقیم ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی، سن رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں جی انجوائے کریں زندگی کو، لائٹ لیں شاعری سے، موسیقی سے، مصوری سے، اور نیچرل جو بیوٹی ہے اس سے انجوائے کریں، یہی زندگی ہے۔ آپ کو بہت سارے سننے والوں اور دیکھنے والوں میں اس وقت شامل ہیں سہیل خاور چیمہ صاحب بھی، جو اس وقت سوئی چیمیاں کے رہائشی ہیں تحصیل گجر خان کے، اور ساؤتھ افریقہ میں موجود ہیں۔ آپ کو وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جناب، بہت بہت شکریہ جی، یہ ہمارے لیے محبت ہے ان کی کہ
हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो हमें भी उनसे उतनी ही मोहब्बत है। शाबी जट साहब हैं, एक बड़े प्यार करने वाले नौजवान हैं, और जब हम यहाँ प्रोग्राम को शुरू करने लगे तो आखिरी कॉल हमने उन्हें की थी। उनसे मोहब्बत के तौर पर वो बहुत मोहब्बत करते हैं पाक वतन की पूरी टीम के साथ, इस नाम के साथ भी कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है उनका, और वो इस टीम का ब्यूरो चीफ भी है हमारे UAE में। सहनसा कोटली आज़ाद कश्मीर के नौजवान हैं और अपने इलाके में मुनशियात के खात्मे के लिए अक्सर स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ करवाते रहते हैं। बैठे तो दुबई में हैं, लेकिन नज़र उनकी सहनसा कोटली में नौजवानों पर है। होनी चाहिए जी, अपनी ज़मीन से रब्ता ज़रूर होना चाहिए, और अपनी ज़मीन से मोहब्बत ही हमारी पहचान है। ये रोज़ी रिज़्क़ के लिए हमें बाहर आना पड़ता है, लेकिन हमारा दिल अभी भी वहीं है। इन्हीं बहुत सारे साथियों जिनका नाम लिया जा सका और जिनका नहीं लिया जा सका वो हमारे साथ मौजूद हैं। के लिए और क्या सुनाना चाहेंगे आप? ये थोड़ी सी जो दिल को चोट लगने वाली जो चीज़ होती है ना, वो गज़ल है कि दिल गिरफ्तार रहे आप दीदा रहे, दिल गिरफ्तार रहे आप दीदा रहे, हम जहाँ भी रहे रंजीदा रहे। दिल गिरफ्तार रहे आप दीदा रहे, हम जहाँ भी रहे रंजीदा रहे, दुखों में ही सारी उम्र बीत गई, दुखों में ही सारी उम्र बीत गई, हम अज़ल से मुक़द्दर गज़ीदा रहे, और तन के ज़ख्म तो दिखाई दिए, तन के ज़ख्म तो दिखाई दिए, जो मन पे लगे वो नादीदा रहे। वाह 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 वाह। और जितने भी दिल में अरमान थे, जितने भी दिल में अरमान थे, कुछ हसरत बने कुछ खाबीदा रहे। वाह वाह। और रास आई न शहर तरब की फजा, रास आई न शहर तरब की फिजा, हम बहारों में गम रसीदा रहे, और चारा गरू की न काम आई चारा गरी, चारा गरू की न काम आई चारा गरी, चाक गरेबां बदन दरीदा रहे, और जिसके जोरो सितम का निशाना बने, जिसके जोरो सितम का निशाना बने, उस दुश्मन जान के गर्विदा रहे। क्या बात, क्या बात। जिसके जोरो सितम का निशाना बने, उस दुश्मन जान के गर्विदा रहे, हम तो जहांगीर बेहुनर बेदाद हैं, हम तो जहांगीर बेहुनर बेदाद हैं, हुनरमंदू के हुनर क्यों पोशीदा रहे, दिल गिरफ्तार रहे आप दीदा रहे, हम जहाँ भी रहे रंजीदा रहे। बहुत खूब जी, माशाल्लाह, बहुत पसंद आया, ज़बरदस्त जी। और उम्मीद है दोस्तों का दिल खुश हो गया होगा। रंजीदा दिलों पर आपने मरहम रख दिया, ये तर्जमानी कर दी। लेकिन जी गम नहीं होगा ना तो खुशी तो है ही नहीं। ये बहुत सारे गम है, कोई वो खास तौर पर दियारे गैर में जो लोग बरसरे पेकार हैं, खानदानों की कफालत के लिए, रोटी रोजी के लिए परदेश की खाक छान रहे हैं, बिलखुसूस हमारे मिडल ईस्ट में के भाई, उनके लिए आपने जो तर्जमानी की। नहीं, मैंने 5-6 साल मिडल ईस्ट में गुजारे हैं और अकेले गुजारे हैं, तो वो मुझे सारे दर्द वो मैंने अपनी जान पे बीते हुए हैं, इसलिए मुझे पता है। लेकिन जो चीज़ है ना जी, एक चीज़ हमेशा जहन में रखें जी कि गम नहीं है ना तो खुशी है ही नहीं। हर चीज़ की पहचान उसका जो है ना मुखालफ है। खुशी, खाली खुशी हो ना तो उससे भी बंदा बिगड़ जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता क्या है। तो खुशी, गम होता है तो आपको खुशी की कदर होती है, गम होता है तो खुशी की कदर होती है। तो खुशी और गम दोनों लाजम मलजूम है। तो गम जो है ना, इससे घबराना नहीं चाहिए। गम आते हैं तो खुशी भी आएगी, ये नवीद है खुशी के आने की, लिहाजा इससे नहीं घबराना चाहिए। तो आगे चलते हैं। एक और गज़ल है, इसमें कोई गम वाली बात नहीं है, ये सारी रवायती गज़ल है और इसमें खूबसूरती का ही है और इसमें महबूब की ही बातें कि फूल कभी चांद कभी तेरा चेहरा देखो। ये कंपैरिजन किया है कि फूल का, चांद का और महबूब के चेहरे का, कि फूल कभी चांद कभी तेरा चेहरा देखूं और कहाँ भला कोई और तुम सा देखूं। फूल कभी चांद कभी तेरा चेहरा देखूं और कहाँ कोई भला तुम सा देखूं। तू उठा दे जो रुख से नकाब कभी, तू उठा दे जो रुख से नकाब कभी, रुए फलक पे दनक को बिखरता देखूं। तू उठा दे जो रुख से नकाब कभी, रुए फलक पे दनक को बिखरता देखूं।
हवा छू कर आई है तेरा संदली बदन, हवा छू कर आई है है। संदल जो है ना खुशबूदार जी, वो लकड़ होती है ना, उससे है कि ऐसा बदन के जिससे खुशबू आ रही हो। कि हवा छू कर आई है तेरा संदली बदन, हर तरफ तेरी खुशबू को फैला देखूं, और लहरा दे जो तू कभी अपनी जुल्फे स्याह, लहरा दे जो तू कभी अपनी जुल्फे स्याह, जुगनू को दिन में जश्न मनाता देखूं। वाह वाह। और दिल ने तराशे हैं कई असनाम ने, दिल ने तराशे हैं कई सनाम ने, दिल ने तराशे हैं कई असनाम ने, मन के मंदिर में वहीं बुत पराना देखूं। बहुत अच्छा। दिल ने तराशे हैं कई असनाम ने, मन के मंदिर में वहीं बुत पराना देखूं। तेरा जो कभी हो जाए गुजर सूए चमन, तेरा जो कभी हो जाए गुजर सूए चमन, बमरू को तेरी जानब आता देखूं। और एक अजब ख्वाहिश जागी है मेरे दिल में, एक अजब ख्वाहिश जागी है मेरे दिल में, कभी छू के तेरा मरमरी सरापा देखूं। और तेरी बेमेरी का असर है चश्मे मुंतजिर पर, तेरी बेमेरी का असर है चश्मे मुंतजिर पर, अश्क जो रोकूं तो लहू को बहता देखूं। और फसले गुल की नमू कब हुई थी पहले, सही। फसले गुल की नमू कब हुई थी पहले, जहांगीर किस लिए कोई और ख्वाब सुहाना देखूं। वाह वाह। फूल कभी चांद कभी तेरा चेहरा देखूं, कहाँ कोई और बला तुम सा देखूं। क्या बात है, बहुत अच्छे जी, बहुत खूब माशाल्लाह। और एक फरमाइश आई है अभी नई भट्टी फ्राम स्ट्रॉबेरी डेडली बर्मिंघम से। और उनकी फरमाइश आज की जो मौसम की जो रौनकें हैं, तमाज़त है, वो कहते हैं कि इंग्लैंड मौसम गर्म हुआ तो लोगों की बहुत चंगा लगना, खास तौर पर एशियन की भी। ऐसी फरमाइश अगर नई भट्टी साहब की हो तो एक गज़ल उनकी या नज़म कोई उनकी जो स्पेशल वो कह रहे हैं कि मेरे नाम से हो। ये नईम भट्टी साहब के नाम करते हैं ये गज़ल कि ये दर्द जो मेरी रगे जाम में है, आहा, ये दर्द जो मेरी रगे जाम में है, इसका इलाज बस तेरी कहाँ में है। क्या बात है, क्या बात है। ये दर्द जो मेरी रगे जाम में है, इसका इलाज बस तेरी कहाँ में है। क्या बात है। मेरी सोचें हर पल तेरा तवाफ करती है, जबरदस्त। मेरी सोचें हर पल तेरा तवाफ करती है, तू मेरे ख्याल तू ही गमा में है। वाह वाह। और किताबे हयात के हर वर्क पे तेरा नाम लिखा, किताबे हयात के हर वर्क पे तेरा नाम लिखा, फकत तेरा ही जिक्र मेरी दास्तां में है। क्या बात। किताबे हयात के हर वक्त पे तेरा नाम लिखा, फकत तेरा ही जिक्र मेरी दास्तां में है। और तेरे इश्क ने मेरी सारी मोहब्बतों को जला डाला, और तेरे इश्क ने मेरी सारी मोहब्बतों को जला डाला। इतनी तपश कहाँ किसी आतिश फिशा में है। क्या बात है, क्या बात। और ये आखिरी शेर है इसका भट्टी साहब के लिए कि जुनू होता अगर तो अब तक उतर गया होता, जुनू होता अगर तो अब तक उतर गया होता, लगता है तू शामिल मेरे खूने रवा में है। ये दर्द जो मेरी रगे जाम में है, इसका इलाज बस तेरी कहाँ। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। दी एंड हो गया जी शायरी की आज की नशिस्त का पाक वतन टीवी के ऊपर, जो आपने दुनिया भर में इस वक्त जहांगीर अशरफ साहब को सुना, देखा और उनकी बातें सुनी। आज के इस खूबसूरत पार्क के अंदर, बर्मिंघम के अंदर जो बातचीत हुई, जो मनाजर आपने देखे, फितरत देखी, नेचर देखी, कुदरत के सारे खूबसूरतियाँ देखी, मनाजर देखे, पानी भी आपको हमने दिखाया, यहाँ पर बत्तखें भी दिखाई, परिंदे भी दिखाए, अपनी बोलियाँ बोलते दिखाए, लोग आते जाते दिखाए।
ہے. یہ چلتی پھرتی زندگی، یہ رواں دواں زندگی، یہ زندگی ساری جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں چلتی کا نام گاڑی. اسی طرح یہ شاعری کا جو سلسلہ ہے یہ انسان کی روزمرہ کی خوراک کا ایک حصہ کہہ لیں، جسم کی ایک ڈیمانڈ کہہ لیں، روح کی ایک پکار کہہ لیں. ہم آخری پیغام کے طور پر آج کی اس نشست کا اختتام کے لیے مائک دیں گے جہانگیر اشرف صاحب کو کہ وہ اپنی طرف سے اگر آپ کو کچھ کہنا چاہیں، میسج دینا چاہیں، آپ سے کوئی دل کی بات کرنا چاہیں تو میری طرف سے مائک جاتا ہے جہانگیر اشرف صاحب کو اور وہ آپ سے کچھ کریں گے بات چیت. بس جی اتنی سی بات ہے. اتنی مصروف زندگی میں، مشینی زندگی میں موسیقی سے، شاعری سے، مصوری سے اپنے دل کو بہلائیں، اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو خوش رہیں، اور لوگوں کو جو آپ کے آس پاس ہیں، اپنی فیملی کو خوش رکھیں. بس یہی کچھ کہنا ہے. اللہ حافظ.